بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر اور مقرب ترین پیغمبروں میں سے ایک ہیں، جنہیں خلیل اللہ یعنی اللہ کے دوست کے خطاب سے نوازا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد آپ وہ پہلے نبی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے توحید کی دعوت پھیلانے کے لیے مبعوث فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عراق، مصر، شام، فلسطین سے لے کر عرب کی صحرائی وادیوں تک توحید کی دعوت عام کی۔ پھر اپنے مشن کی تکمیل کے لیے سرزمین عرب میں اپنے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، شام فلسطین میں دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام اور مشرقی اردن میں اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو مقرر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 69 مقامات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آباء و اجداد عرب سے ہجرت کر کے بابل میں آباد ہو گئے تھے، وہیں آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ کے والد کا نام تارخ تھا، لیکن آزر کے نام سے مشہور ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت آزر کی عمر 75 سال تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ آزر کے 2 بیٹے اور تھے، ایک کا نام ناہور اور ایک دوسرے کا ہاران تھا۔ ہاران کا انتقال آزر کی زندگی ہی میں ہو گیا تھا۔ ہاران کا ایک بیٹا تھا جس کا نام لوط تھا۔ لوط نے باپ کے انتقال کے بعد اپنی زندگی کا بیشتر حصہ چچا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ گزارا، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے حضرت لوط علیہ السلام کو بھی نبوت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر کا پیشہ بت تراشی اور بت فروشی تھا۔ بابل اور اس کے آس پاس کے علاقوں پر نمرود کی بادشاہی تھی، جو ایک بہت طاقتور، متکبر، جابر اور بت پرست حکمران تھا۔ کہتے ہیں سر پر تاج سب سے پہلے نمرود ہی نے پہنا تھا۔ یہ بازور طاقت رایا سے اپنی پرستش کرواتا تھا۔ ایک مرتبہ اس نے عجیب و غریب خواب دیکھا کہ آسمان میں ایک بڑا روشن اور خوبصورت ستارہ نمودار ہوا، جس کی روشنی اتنی تیز تھی کہ اس نے آسمان پر چمکتے چاند اور لاکھوں ستاروں کی روشنی کو ماند کر دیا۔ صبح ہوئی تو نمرود نے شہر کے تمام بڑے کاہنوں اور نجومیوں کو دربار میں طلب کر کے اپنا خواب سنایا اور تعبیر مانگی۔ نجومیوں نے تعبیر بتائی کہ اس شہر میں عن قریب ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو عظیم بادشاہ کے زوال کا باعث بنے گا اور ہمارے خداؤں کے مقابلے میں ایک خدا اور اس کے دین کا پرچار کرے گا۔ نجومیوں کی اس خبر نے نمرود کو سخت پریشان کر دیا، چنانچہ اس نے فوری حکم جاری کیا کہ جو بھی بچہ پیدا ہو اسے فوری قتل کر دیا جائے۔ بادشاہ کے حکم پر عمل درآمد شروع کر دیا گیا اور بابل کی سرزمین نوزائیدہ بچوں کے خون سے سرخ ہو گئی۔ ابھی بادشاہ کے فرمان کو کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب آ گیا۔ آزر اور ان کی بیوی کو اپنی اولاد کا خون کسی صورت قبول نہ تھا، لہٰذا دونوں نے اسے چھپ کر پالنے کا فیصلہ کر لیا اور بچے کی پیدائش سے پہلے ہی بابل کے پہاڑوں کے درمیان ایک غار تلاش کر لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے اس غار میں بچے کو جنم دیا اور بچے کو اللہ کے سپرد کر کے گھر واپس آ گئیں۔ والدہ باقاعدگی سے چھپتے چھپاتے غار میں جاتی اور بچے کو دودھ پلا کر واپس آ جاتی۔ کچھ ہی عرصے بعد آپ بڑے ہو گئے تو والدین گھر لے آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچپن ہی سے صراط مستقیم پر رکھا تھا اور اپنا رسول منتخب کر لیا تھا۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے ابراہیم کو پہلے ہی سے ہدایت دی تھی اور ہم ان کے حال سے واقف تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے والد کو بت تراشتے اور ان کو پوجتے دیکھا تو ان سے سوال کیا، یہ کیا ہیں؟ والد نے کہا کہ یہ ہمارے خدا ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعجب سے کہا، یہ کیسے خدا ہیں کہ جن کو آپ پتھر کے ٹکڑوں سے تراش رہے ہیں؟ ایک دن والد نے انہیں ایک ٹوکرے میں بہت سے بت رکھ کر دیے کہ انہیں بازار جا کر بیچاؤ۔ والد کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ٹوکرا لے کر بازار پہنچ گئے اور آواز لگائی، اے لوگو، آؤ اور اپنے ان خداؤں کو خرید لو جو تم کو نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان۔ لوگ جمع ہوتے اپنے خداؤں کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گفتگو کو تعجب سے سنتے اور آگے بڑھ جاتے۔ بازار جانے کا یہ سلسلہ کئی دن تک جاری رہا، جب ایک بت بھی نہ بکا بلکہ لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شکایتوں کے انبار لگا دیے
तो अज़र ने इन्हें बाज़ार भेजना बंद कर दिया। मबूद हकीकी की जस्तजू और निज़ाम कायनात पर गौर तदब्बर अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बचपन ही में रुश्द व हदायत और अक्ल सलीम अता फरमाई थी। वो बहुत छोटे थे तो हैरान होकर सोचते थे कि अपने हाथों से तराशे पत्थर के टुकड़े हमारे मबूद कैसे हो सकते हैं। इन्हें इस मबूद हकीकी की तलाश थी जिसने कुल कायनात को बनाया है। दिन रात इसी जस्तजू और फ़िक्र में रहते। फिर बारी ताला ने इन्हें कायनात की कुछ और चीज़ों का भी मुशाहिदा करवाया। कुरान पाक में इरशाद है, और हम इब्राहीम को आसमानों और ज़मीन के अजायबात दिखाने लगे ताकि वो खुद यकीन करें। यानी जब रात ने उनको पर ढांप लिया तो आसमान में एक सितारा नजर आया। कहने लगे ये मेरा परवरदिगार है। जब वो गायब हो गया तो कहने लगे कि मुझे गायब हो जाने वाले तो पसंद ही नहीं। फिर जब चाँद को चमकते देखा तो कहने लगे यही मेरा परवरदिगार है। लेकिन जब वो भी छुप गया तो बोल उठे कि अगर मेरा परवरदिगार मुझे सीधा रास्ता नहीं दिखाएगा तो मैं इन लोगों में से हो जाऊंगा जो भटक रहे हैं। फिर जब सुबह सूरज को देखा कि वो आसमान पर जगमगा रहा है तो कहने लगे मेरा परवरदिगार ये है, ये सबसे बड़ा है। मगर जब वो भी ग्रुप हो गया तो कहने लगे लोगों, जिन चीज़ों को तुम अल्लाह का शरीक बनाते हो मैं उनसे बेजार हूँ। ये डूबने और गायब होने वाले मेरे रब नहीं हो सकते। वो कोई और ही हस्ती है जिसने इन सबको पैदा किया है, जो कुल कायनात का मालिक और खालिक है। मैंने सबसे यकसू होकर अपनी ज़ात को उसकी तरफ मतवज्जा कर लिया है जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया है। मैं मुशरिकों में से नहीं हूँ। गलत नबूवत से सरफराज होने के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले अपने वालिद को तौहीद की दावत दी। इस सिलसिले में उनका अपने वालिद से क्या मुनासरा हुआ, इसे कुरान पाक की सूरह मरियम में यूँ बयान किया गया है। और जब इब्राहीम ने अपने वालिद से कहा कि अब्बा ऐसी चीज़ों को क्यों पूछते हो जो सुन नहीं सकती हैं और ना देख सकती हैं और ना ही आपके कुछ काम आ सकती हैं। अब्बा मुझे ऐसा इल्म मिला है जो आपको नहीं मिला, तो आप मेरे साथ हो जाइए, मैं आपको सीधी राह पर चला दूँगा। ऐ मेरे अब्बा शैतान की पूजा ना कीजिए, बेशक शैतान अल्लाह का नाफरमान है। मुझे डर लगता है कि आपको अल्लाह का अज़ाब ना पकड़े, तो आप शैतान के साथी हो जाएंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अदब व एहतराम के तकाज़ों को पूरी तरह मलहूज़ खातिर रखते हुए नहायत मोहब्बत और प्यार से बाप को तौहीद के बारे में आगाह फरमाया। लेकिन मुशरिक बाप ने इस नरमी और प्यार के जवाब में नहायत दुरुस्ती और सख्ती से बेटे से कहा, तू अगर मेरे मबूदों की मुखालफत करने से बाज ना आया तो याद रख मैं तुझसे बहुत सख्ती से पेश आऊँगा। कुरान करीम में है, आज़र ने कहा, क्या इब्राहीम क्या तू मेरे मबूदों से बरगश्ता है? अगर तू बाज ना आया तो मैं तुझे संगसार कर दूँगा और तू हमेशा के लिए मुझसे दूर हो जा। इस मौके पर इब्राहीम ने अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं आपके लिए अपने परवरदिगार से बख्शिश तलब करूँगा, बेशक वो मुझ पर मेहरबान है। मुशरिकीन और ईद और बुतों की तबाही। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम का ईद का दिन करीब आया तो पूरी कौम शहर से बाहर जाकर ईद की खुशियाँ मनाने की तैयारियों में मसरूफ़ हो गई। लोगों ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी साथ चलने की दावत दी, लेकिन उन्होंने साथ जाने से इनकार कर दिया। दरअसल वो किसी ऐसे ही मौके की तलाश में थे कि जब कोई ना हो और वो सबसे बड़े इबादत खाने में रखे बुतों को मस्मार कर सकें। चुनाचा लोगों ने ईद की सुबह सबसे पहले अपने बुतों को सजाया, फिर हस्बे रवायत उनके आगे तरह तरह के खाने सजाए। उनमें रिवाज था कि मेले से वापस आकर इस खाने को बड़े एहतराम से खाते थे। इस काम से फारिग होकर सब लोग शहर से बाहर मेले में चले गए तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कुल्हाड़ा लिए बुत खाने में दाखिल हो गए। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम छुपते छुपाते उनके मबूदों के पास गए और फरमाने लगे, तुम खाते क्यों नहीं? तुम्हें क्या हो गया है? तुम बोलते क्यों नहीं? फिर उनको दाएं हाथ से मारना और तोड़ना शुरू कर दिया। जब तमाम बुत तोड़ दिए तो आपने कुल्हाड़ा बड़े बुत के कंधे पर लटका दिया और घर वापस आ गए। शाम को लोग खुशी खुशी मेले से वापस आए और बुतों के पास पहुँचे ताकि खाना तनावल करें, लेकिन वहाँ का तो मंजर ही हैबतनाक था। सब बुत औंधे मुँह पड़े थे। ये मंजर देखकर वो गुस्से से पागल हो गए
उनमें से बहुत सौ को यकीन था कि ये काम इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही ने किया होगा। कुरान पाक में यूँ इरशाद फरमाया गया है, लोगों ने कहा कि हमने एक नौजवान को उनका जिक्र करते हुए सुना है, उसे इब्राहीम कहते हैं। चुनांचा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुलाया गया। जब आप आए तो मुशरिकों ने कहा, ये इब्राहीम, हमारे माबूदों के साथ तुमने क्या किया है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, ये इनके बड़े पुत ने किया होगा, अगर वो बोलते हो तो इनसे पूछ लो। उन्होंने अपने दिल में गौर किया तो आपस में कहने लगे, बेशक हम ही सालम हैं। फिर शर्मिंदा होकर सर नीचे कर लिया और बोले, तुम जानते हो कि ये बोलते नहीं हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, फिर तुम अल्लाह को छोड़कर क्यों ऐसी चीज़ों को पूछते हो जो तुम्हें कुछ फ़ायदा ना दे सकें और ना नुकसान? तुफ़ है तुम पर, और जिनको तुम लोग को अल्लाह के सिवा पूछते हो उन पर क्या तुम अक्ल नहीं रखते? बुतों को तोड़ने का अमल नमरूद और उसकी कौम के नज़दीक नाकाबिले माफ़ी जुर्म था। लिहाजा उन्होंने फ़ैसला किया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इतनी सख्त और इबरतनाक सज़ा दी जाए कि आइंदा किसी को बुतों की बेहुरमती की हिम्मत ना हो। चुनांचे नमरूद के हुक्म पर खंदक खोदी गई। फिर कौम के हर फर्द ने इस काम को मुकद्दस समझते हुए इसमें लकड़ियाँ जमा करनी शुरू की। यहाँ तक कि अगर किसी का कोई काम रुका हुआ था तो उसने मन्नत मान की कि यह काम हो जाए तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जलाने के लिए लकड़ी का गट्ठा दूंगा। खंदक के भर जाने के बाद इसमें आग रोशन कर दी गई। फिर एक मंजनीक बनाई गई जिसके ज़रिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को रस्सियों से जकड़ कर आग में फेंक दिया गया। इस मौके पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, हमें अल्लाह ही काफ़ी है और वही बेहतर कारसाज है। हज़रत इब्ने अब्बास और सईद बिन जबीर से मरवी है कि उस वक्त बारिश वाला फरिश्ता अस्तराब और परेशानी के आलम में कह रहा था कि कब मुझे हुक्म मिले और बारिश बरसाऊं, लेकिन अल्लाह का हुक्म बिला वास्ते के ज़ेर तेज़ थे, यानी अल्लाह ने खुद ही आग को हुक्म फरमा दिया। आग गुलो गुलजार बन गई। कुरान करीम में इरशाद बारी है ताला है, हमने कहा, ए आग, इब्राहीम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। मरवी है कि हज़रत जिब्राहील अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ थे और आपकी जबीने अतहर से पसीना पूंछ रहे थे और इस पसीने के अलावा उन्हें और कोई तकलीफ़ नहीं पहुंची। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने के वालिद के कहे हुए कलमात में सबसे अच्छे कलमात वो हैं जो उसने अपने बेटे को आग के अंदर देखकर कहे थे, ए इब्राहीम, तेरा परवरदिगार बेहतरीन परवरदिगार है। हज़रत मनहाल बिन उमरों से मरवी है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस आग में 40 या 50 दिन ठहरे और उन्होंने फरमाया कि मैंने इन दिनों से अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजारी और मेरी तमन्ना रही है कि मेरी पूरी ज़िंदगी इसी की तरह हो। हज़रत उम्मे शरीक से मरवी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छिपकली के मारने का हुक्म दिया और फरमाया कि ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर जलने वाली आग को फूंक मार रही थी। मसनद अहमद में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, छिपकली को मारो, क्योंकि वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर आग को फूंके मार रही थी। रावी कहते हैं कि फिर सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा भी इनको मारती थी। वीडियो अभी जारी है, नेक्स्ट पार्ट कर लेकर हाजिर होंगी। अगर आपको पसंद आती है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।